So according to the dictionary, these are not English words, but they could be viewed as possible English words. That is, our phonological knowledge of the patterns of sounds in English words would allow us to treat these forms as acceptable if at some future time they came into use. अब जो स्लेबल जो हैं दीज आर नॉट, अगर हम इसको देखें तो जो हम आगे एग्जांपल में आपको दें तो ये डिक्शनरी वर्ड्स नहीं हैं, बट बिकॉज दे आर यूज्ड सो दीज आर कंसिडर्ड एज पॉसिबल इंग्लिश वर्ड्स, or this might be known as a phonological knowledge of patterns of sound in English. Let's have a look at the example. Ahmed, I think Ahmed is one very ignorant guy. Yeah, he is a big wig. Then, until then, they represent accidental gaps in the vocabulary of English. अब इसमें देखेंगे तो बिग वीक जो है, अगर हम इसको उस तरह से देखें तो डिक्शनरी के वर्ड्स अगर उस तरह से नहीं होंगे, लेकिन ये पॉसिबल इंग्लिश वर्ड्स हैं on the basis of our phonological knowledge of language of English language. They might, for example, begin as an invented abbreviations. अब ये इसको एक इन्वेंट किया जाता है, लाइक इसको उसमें पार्ट नहीं है डिक्शनरी का, बट इसको इन्वेंटेड है और ये इसका किसी भी स्पीकर के उसमें लैंग्वेज के नॉलेज में होगा. Then a syllable must contain a vowel-like sound including diphthong. The most common type of syllable in language also has a consonant C before the vowel V and is typically represented as CV. अब अगर हम देखेंगे syllable की बात कर रहे थे, जो more than अगर phonemes larger उसकी जो form है तो वो syllable कहलाती है. तो अब अगर हम इसको हम देखें तो अगर जो स्लेबल है वो कंटेन करता है एक वाउल और वाउल लाइक साउंड इंक्लूडिंग डिफ्थोंग्स, उसको मस्ट है. लाइक अगर कॉन्सोनेंट तो है, लेकिन वो स्लेबल तब बनेगा जब उसके साथ कोई वाउल होगा या वाउल जैसी साउंड, जो कि जैसे कि डिफ्थोंग्स हैं जो हमने स्टडी किए थे प्रीवियस लेक्चर में, तो वो भी हो सकते हैं, उसके साथ वो स्लेबल कहलाएगा. द मोस्ट कॉमन टाइप जो उन्होंने बताई है लैंग्वेज में वो कॉन्सोनेंट के साथ सी और वी का इसका कम्बिनेशन है. अब टेक्निकल द बेसिक एलिमेंट ऑफ द स्लेबल आर द ऑनसेट, one or more consonants followed by the rhyme. The rhyme sometimes written as rhyme. इसमें इस तरह भी लिखा जाता है. Consists of a vowel which is treated as a nucleus plus any following consonants described as the coda. अब इसमें basic part कौन सी, इसमें onset होता है, इसमें rhyme होता है और इसमें coda होता है. So syllables like me, to or no have an onset. अब अगर इसमें देखेंगे तो इसमें सिर्फ onset जो है वो एक है, क्योंकि वो वाउल की बात हो रही है. तो हमारे पास जो है वो onset एक है and a nucleus but no coda. They are known as open syllables. अब ऐसे syllables जिसमें के उसमें कोडा नहीं होगा, न्यूक्लियस और ऑनसेट होगा, तो इसमें न्यूक्लियस होगा लेकिन कोडा नहीं होगा, तो वो ओपन स्लेबल्स कहलाएंगे. व्हेन या कोडा इज प्रेजेंट, लेकिन जहाँ कोडा प्रेजेंट होगा एज इन द स्लेबल्स अप, कप, एट और हैट, दे आर कॉल्ड क्लोज स्लेबल्स. अब ऐसे जो होंगे स्लेबल्स वो क्लोज स्लेबल्स कहलाएंगे. Then we have the other linguistic level, that is morphology. The term for investigating basic forms in language generally known as morphology. अब हम इसकी जो basic forms of language जो हमने investigate करना होता है, तो जो term use होती है वो morphology होती है. This term, which literally means the study of forms, was originally used in biology. Biology में originally use किया गया था, but since the middle of the 19th century से has also been used to describe the type of investigation that analyzes all those basic elements used in a language. तो अब 19th century onwards ये किसी भी लैंग्वेज के जो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो यूज़ होती है, जिसमें कि उसके बेसिक्स एलिमेंट्स को जो है वो एनालाइज किया जाता है. What we have been describing as elements in the form of a linguistic message are technically known as morphemes. अब जो एलिमेंट्स हम जिसको हमने इन्वेस्टिगेट करना है, जिनको एनालाइज करना है, उन्हें morpheme कहते हैं. So morphemes, the definition of a morpheme is the minimal unit of meaning or a grammatical function. अगर उसकी definition की बात करें तो minimal unit of meaning या grammatical function जो है हम उसे morpheme कहेंगे. Units of grammatical functions include forms used to indicate past tense और plural tense. अब इसमें जो grammatical function की जो form होंगी यूज़, वो किसी भी उसके जो कोई भी जो फॉर्म है उसकी पास्ट और प्लूरल जो उसकी जो फॉर्म है उसको इंडिकेट करने के लिए यूज़ होगा. वी कैन रिकग्नाइज दैट इंग्लिश वर्ड फॉर्म सच एज टॉक्स,
टॉकर, टॉक्ड एंड टॉकिंग मस्ट कंसिस्ट ऑफ वन एलिमेंट टॉक। अब इसमें बेसिक जो है वो टॉक है एंड अ नंबर ऑफ अदर एलिमेंट्स सच एज एस, ई आर एंड ई डी एंड इंक। ऑल दीज एलिमेंट्स आर डिस्क्राइब्ड एज मोर्फीम्स। अब इसमें जो फर्दर जो है यहाँ पर जैसे टॉक्स जो है इसके टेंस को कर रहा है, ठीक है। अब टॉक्ड जो है इसमें भी ये इसके टेंस को कर रहा है, पास्ट की बात हो रही है। टॉकिंग जो है वो भी इसके कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सब जो एलिमेंट्स हैं ये मोर्फीम्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस द पुलिस रीओपन द इन्वेस्टिगेशन। अब अगर इसको देखें द वर्ड रीओपन कंसिस्ट ऑफ 3 मोर्फीम्स। अब इसमें हम देखेंगे पहला जो है अगर हम देखें जो वन मिनिमम यूनिट ऑफ मीनिंग इज ओपन एंड अदर मिनिमम यूनिट ऑफ मीनिंग इज री एंड मीनिंग अगेन एंड अ मिनिमम यूनिट ऑफ ग्रामेटिकल फंक्शन इज ई डी, री ओपन। अब देखिए री, ठीक है, ये पहला हो गया। ओपन जो है उसका बेसिक जो फंक्शन वो उसका वर्ड है वो हो गया, और ई डी जो है उसके टेंस को यूज़ उसका कर रहा है, डिनोट कर रहा है, उसकी ग्रामेटिकल फंक्शन को डिनोट कर रहा है। Then there are further categorization of the morphemes. There are free morpheme and bound morpheme, and these are further categorized into other categories that we will discuss later. So there are free morphemes, that is morphemes that can stand by themselves as single words. For example, open and sure. अब अगर हम देखें जो ऐसे वर्ड हैं जो कि अपने ओन पे रह सकते हैं, लाइक उनके अगर हम री को नहीं लगाते या आखिर में ई डी नहीं लगाते तो अपने ओन पे स्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जो अपने ओन पे स्टैंड कर सके उन्हें हम फ्री मोर्फीम्स कहते हैं। द बाउंड मोर्फीम्स ऑन द अदर हैंड्स आर दोज फॉर्म दैट कैन नॉट नॉर्मली स्टैंड अलोन एंड और टिपिकली अटैच टू एन अदर फॉर्म। वो किसी न किसी फॉर्म से अटैच होते हैं, लाइक आर ई, लाइक आई एस टी एंड ई डी और एस, उसके साथ वो पार्ट उसका इंक्लूडेड होता है। So types of free morpheme. Free morpheme fall into 2 categories: lexical morphemes, and then there comes a functional morpheme. The lexical morpheme is the first category, that is the set of ordinary nouns, adjectives and verbs that we think of as the words that carry the content of the message we convey. अब जो content जो convey कर रहे होते हैं ना किसी भी उसमें तो सेंटेंस में, तो वो लेक्सिकल मोर्फीम होते हैं। दीज फ्री मोर्फीम्स आर कॉल्ड लेक्सिकल मोर्फीम्स एंड सम एग्जांपल्स आर गर्ल, मैन, हाउस, टाइगर, सैड, लॉन्ग, येलो, सिंसियर, ओपन, लुक, फॉलो और ब्रेक। अब ये सब आप देख रहे हैं कि ये सब नाउन्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, वर्ब्स हैं। सो वी कैन ऐड न्यू लेक्सिकल मोर्फीम्स टू द लैंग्वेज rather easily, so they are treated as an open class of words. अब इसमें क्योंकि एडिशन हो सकती है तो इनको ओपन क्लास ऑफ वर्ड्स कहा जाता है। और ये फ्री मोर्फीम की जो फर्दर टाइप है लेक्सिकल मोर्फीम। फ्री मोर्फीम की एक और टाइप है जिसे कि हम कहते हैं फंक्शनल मोर्फीम। So other types of free morphemes are called functional morphemes. Examples are and, but, when, because, on, near, above, in, the, that, it, them. This set consists largely of the functional words in the language such as conjunctions, prepositions, articles and pronouns. ठीक है, पहला वाला था वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव से। अब ये वाला जो है इसमें क्या है, कंजंक्शंस हैं, प्रेपोजिशंस हैं, आर्टिकल्स हैं और प्रोनाउंस हैं। बिकॉज वी ऑलमोस्ट नेवर ऐड न्यू फंक्शनल मोर्फीम्स टू द लैंग्वेज, दे आर डिस्क्राइब्ड एज द क्लोज क्लास ऑफ वर्ड्स। अब ये जो है क्लोज क्लास ऑफ वर्ड है क्योंकि उसमें एडिशन नहीं हो सकती, ठीक है। फंक्शनल जो है मोर्फीम उसमें जो है एडिशन नहीं हो सकती है, लेकिन जो लेक्सिकल है उसमें एडिशन हो सकती है, ठीक है। अब इसको आपने याद रखना है कि फंक्शनल और लेक्सिकल में क्या डिफरेंस है बेसिक।